آج کا موضوع ہمارا ہے سیرت رسول. سیرت النبی کی روشنی میں دور حاضر میں ہمارے لیے رہنمائی. تو سب سے پہلے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیرت کہتے کس کو ہے. سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آپ کی آخری سانس تک آپ کی زندگی کی جو اہم واقعات ہیں ان کو جب سنایا یا لکھا جاتا ہے تو اس کو سیرت کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اور سب سے اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور امت ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں اور کسی کو بھی جانے بغیر اس سے محبت نہیں کی جا سکتی. تو جو اپنے نبی کو جتنا زیادہ جانے گا اسی قدر ان کو چاہے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي میری پیروی کرو. تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ اللہ تم کو چاہے گا. یغفر لکم ذنوبکم اور وہ تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، یعنی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی ہوگی اور محبت کرنے کے لیے ان کی بایوگرافی کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. آج ہماری جو نوجوان نسل ہے تو یہ اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں یہ انتہائی ضروری ہو گیا کہ ہر گھر میں ہر ماں جو ہے سیرت نبی کا مطالعہ ضرور کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ضرور پڑھے، کیونکہ ہماری نسل جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی، پوری دنیا میں پٹ رہی ہے. کیوں پٹ رہی ہے؟ کیونکہ نہ قرآن سے واقف ہے نہ نبی کے حالات سے، نبی کی بایوگرافی سے واقف ہے. تو جب تک ہم مائیں نبی کے بارے میں، نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں جانیں گی وہ اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گی؟ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو سمجھیں. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیے ہماری نوجوان نسل میں میجورٹی کا حال یہی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے تو وہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نام بھی نہیں پتہ ہے. تو جس امت کو جو امت نبی کے نام سے بھی ناواقف ہے وہ دنیا اور آخرت میں کیسے ترقی کرے گی؟ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو میجورٹی ایسی ملیں گی کہ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں اور محبت کے دعوے کے طور پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عرس مناتے ہیں. ابھی تو عید میلاد النبی جو 30 تاریخ کو آنے والی ہے ایک نئی عید ہو گئی ہے ہمارے لیے. تو کیا یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا عید میلاد النبی منانے کا یا صحابہ اکرام نے منایا تھا جو آپ ان کی نقل کر رہے ہیں؟ یہ ہماری ہی ایجاد کردہ ہم رسومات میں گھرے ہوئے ہیں. نبی کی محبت اور ایسے لوگوں کو آپ زیادہ تر دیکھیے گا کہ سال بھر نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ نبی کی فرما برداری، صرف عید میلاد النبی کے وقت انہیں محبت یاد آتی ہے. تو اب صورتحال جو ایسی پیدا ہو گئی، امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کو دور ہم ہی کر سکتے ہیں. اسے دور ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب تم ایسی بدعات کو ہوتے دیکھو تو تم کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں سے روک دو، اپنی طاقت سے روکو اس کو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن رہو گے، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے مخالفت کرو، اور اگر تم زبان سے مخالفت کرو گے تو تم مومن رہو گے. اور اگر تمہارے اندر زبان سے بھی مخالفت کی طاقت نہیں تو پھر دل میں ہی اس سے نفرت کرو اور اس جگہ نہ جاؤ
वहाँ से हट जाओ। और कोई बंदा इतना भी ना कर सके तो ईमान उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी नहीं है। तो आज का जो हमारा माशरा है, हमें इस वक्त ये हदीस ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हमें अपने हाथों से रोकना है, या अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो हमने जो इंतज़ाम किया है कि हम ज़बान से इसको रोकें। ये रोकने ही का काम है कि हम हकीकत लोगों तक पहुँचाएं कि नबी की मोहब्बत कैसे दिल में पैदा हो सकती है। उर्स मनाने से मोहब्बत नहीं आती है, ये तो बिदात, हम बिदात को जन्म दे रहे हैं, और बिदात करने की सज़ा क्या है? जहन्नुम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी हदीस को मैं एंड करूँगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा ऐसा हुआ कि जब कोई नबी आया तो उनके कुछ न कुछ हवारी होते थे या सहाबा होते थे। नबी की वो क्या करते थे? हवारी या सहाबा क्या करते थे? नबी की जो जो सुन्नतें थी उसको मजबूती से पकड़ लेते थे। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि ये हवारी या सहाबा जब चले गए तो कुछ नाखल्फ लोग, नाअकल लोग ऐसे उठे जो कहते वो थे जो करते नहीं थे, और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं मिला था। तो आज हमारी उम्मत का यही हाल हो गया। वयक़ूलूना यफ़अलूना वयफ़अलूना ला युअमरूना, कि वो करते वो हैं, कहते वो हैं जो करते नहीं हैं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। तो हमारा आज ये हाल हो गया। तो सबसे पहले सीरतुन नबी को शुरू करने से पहले हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात जानेंगे कि आपके अंदर क्या क्या बातें थी। ज़्यादा नहीं, वक्त बहुत मुख्तसर है, तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग ख़ुसूसियात जानेंगे जो सिस्टर शाहिदा आपके सामने बताएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी उनको सलाह, खुद तारीफ़ें, तमाम सल्लाहियाँ, तमाम बड़ाइयाँ, तमाम का तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिसने हमें इस बिज़ी शेड्यूल में भी रहकर उसकी महफिल में, उसके ज़िक्र की महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानने के लिए हमको जोड़ दिया। और जहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र हो रहा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, उस महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं। यहाँ हम अपनी इस नंगी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन इस मजलिस को फरिश्ते घेरे हुए हैं। और इस मजलिस में जो भी इंसान दुआ मांगेगा इस मजलिस की दुआ भी कबूल होगी। तो हम यही दुआ मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम में चलाए, क्योंकि और हमें हिदायत दे। क्योंकि ये बेहतरीन दुआओं में से बताया गया कि हिदायत की दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है। इंसान जिस हिदायत पर रहता है, सिरात मुस्तकीम पर चलता है, तो वो आखिरी पर ठिकाना जन्नत होता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी ज़बान को गलत कलामी से बचाए और जो सही सही बात है हम लोगों तक पहुँचाने वाला है। आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ऊपर, जो हमारे हादी, हमारे रहबर, हमारे आइडियल हैं। हम अगर किसी को भी अपना आइडियल मानते हैं तो सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो थे। जब हम उनके बारे में जानते नहीं हैं तो उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत या उनकी तरह बनने की कोशिश भी हम नहीं करते। लेकिन जब हम जान लेते हैं, अभी जैसे कि रेशमा सिर्फ हम ऐसा नाम सुने कि हाँ रेशमा है, रेशमा पढ़ाती है, लेकिन हमको रेशमा के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं कि रेशमा क्या पढ़ाती है, रेशमा कैसे पढ़ाती है, रेशमा कैसे इंटरेक्ट करती है लोगों से, रेशमा के अखलाक क्या है, तब तक हमारी मोहब्बत रेशमा की दिल में वो नहीं होगी। जब हम उसके बारे में जानेंगे तब मोहब्बत होगी। तो ये तो हमने एक आम इंसान एक एग्जाम्पल दी, एक मिसाल दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हम उम्मत है, जो हमारे लिए इंशाअल्लाह शिफात का ज़रिया बनेंगे, उनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद और बेइंतहा ज़रूरी है, ताकि हम कल उनकी शिफात से अल्लाह आप ने कहा ना कि जब भी दुआ मांगा करो जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगा करो। और हमारा अमल अगर जन्नतुल फिरदौस वाला नहीं रहा तो हम ऐसी दुआ मांग के क्या करें? तो हमको सबसे पहले हमको अमल ऐसा करना होगा। हम सबसे पहले देखते हैं इखलाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूल सल्लम आला इखलाक के तकमील पर थे, भेजे गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप वसल्लम को आला इखलाक और बुलंदी पर फाइज किया था।
इसी तरह हम अपने भी अखलाक को जायज़ा लेते रहे, आप वसल्लम के अखलाक सुनते रहे और अपना जायज़ा, अपना मुहासबा खुद करते रहे कि हम कैसे, हम इस मियाद पर उतर सकते हैं। कुछ तो उतरे, थोड़ा उतरे, लेकिन हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखलाक का कहीं हम लोग में उस तरह से नहीं आ सकते, लेकिन कुछ थोड़ा करके कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कुछ तो हासिल कर ही सकेंगे। उसके बाद आप उसका अखलाक क्या था, काना खुलुकुल कुरान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान का, आप कुरान के एक चलता फिरता नमूना थे। जो कुछ भी कुरान में इंसान के लिए एक मखलूक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका अमली नमूना थे। यानी कुरान में जो कुछ उतारा गया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमल पर ढाल दिया, यानी कि उस पर अमल किया, अमल बताया कि अमली नमूना है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है कि आप नर्म क्यों हैं, यानी कि वो सबसे नर्म थे। नर्म क्यों यानी कि नरमी से बात करने वाले। अगर आप कम होते, तंगदिल होते, तंगदस्त होते, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बिखर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं थे, बल्कि आप क्या कीजिए, अगर आपके साथ कुछ इस तरह कोई वाक़या होता भी है, आपके साथ कोई इंसान, कोई भी आपके सहाबा कराम कुछ नीच बात हो जाती है, तो क्या कीजिए, दर गुजर कीजिए और उनसे बख्शिश का मुतालबा, यानी कि अल्लाह से उनके लिए बख्शिश मांगिए और मशवरा लीजिए और पुख्ता अज़म कीजिए और भरोसा अल्लाह पर रखिए, क्योंकि अल्लाह तवक्कुल रखने वालों को पसंद करता है। यानी कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया जा रहा है, आप सब काम कीजिए लेकिन तवक्कुल जो है अल्लाह पर रखिए। इसी तरह ये अपने ऊपर भी हमने कि हम इंसान से, देखिए इंसान है, इंसान की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी इंसान को अपनी कुछ तकलीफ बताएं, कुछ ऐसी परेशानी बताने कोई बड़ी बुरी बात नहीं, लेकिन तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर कि अल्लाह मेरा ये काम आसान करने वाला है। कोई इंसान के बस में नहीं है कि वो मेरा काम को आसान कर दे। इसी तरह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप मशवरा कीजिए, दर गुजर कीजिए, बख्शिश का मुतालबा कीजिए, लेकिन तवक्कुल जो है वो अल्लाह पर कीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद बताया गया इस आयत में रसूल सल्लम की शख्सियत को उभर कर सामने आती है कि आपका अखलाक, इससे सबसे बड़ी खूबी क्या थी, क्या अलामत थी कि आप सल्लम अपने साथियों पर बहुत नर्म थे। यानी कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने ज़ात के लिए नहीं, बल्कि अपने साथियों पर भी वो बहुत ही नर्म के साथ सलूक किया करते थे। और इसका रहमत का इजहार किस तरह होता था कि वो सबसे ज़्यादा नरमी के साथ थे। आप लोगों के साथ मामला करते तो नरमी से काम लेते। इसी तरह आपकी ज़बान का इस्तेमाल, आप ज़बान का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करते थे। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बदगो थे, ना फहश थे, ना बदअसर लान तान और फिटकार करने वाले थे। आज इसी तरह हम अपना मुहासबा करें कि ज़रा हम अगर अपनी ज़बान को हम एहतियात करते नहीं, तब जहाँ आप सल्लम क्या करते थे, पहले तोलते थे फिर बोलते थे। आज हमारा तर्ज़ अमल क्या है कि पहले बोलते थे फिर तोलते हैं। तो ये हमको अपना जायज़ा लेना चाहिए। और बदगोई करना, बद कलामी करना, फहश गो करना, यानी कि लान तान करना, फिटकार करना किसी पर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं था। तो हम उनकी उम्मत है, तो हमको भी ये उनका तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए। और ना ही वो गाली गलौज देने वाले हैं। जब किसी को डांटने का मौका आता तो सिर्फ यही बोलते। एक हदीस में आता है कि तुम्हारा हाथ, और एक हदीस में आता है कि तुम्हारी पेशानी और तुम्हारे हाथ जो है वो पाक आलूगी। यानी कि अगर किसी को डांटने का मौका आता तो सिर्फ यही दो अल्फाज बोलते थे कि तुम्हारे हाथ या तुम्हारी पेशानी जो पाक आलू दो, इसके अलावा और कोई अल्फाज अपनी ज़बान से बोल नहीं जाते थे। इसी तरह यानी आप एक हदीस में आता है कि आप सल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हों। हम अपने जायज़ा लें इसी तरह कि हम बेहतरीन लोगों में शामिल हैं। हमारा अखलाक हमसे बड़ों में से या हमसे ओहदे वाले में से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा अखलाक जो हमसे कमज़ोर होते हैं, जो हमारे जो गुलाम होते हैं, जो हमारी कनीज़ होती है, उनके साथ हमारे अखलाक कैसा होता है। तो यहाँ पर हमको अपने अखलाक बहुत अच्छा करना है, क्योंकि हम अपने उससे जो बड़े होते हैं, या चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो स्टेटस में हो, चाहे वो उम्र में हो, हम नहीं चाह के भी उनसे अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। हमारे अखलाक कहाँ गड़बड़ाता है, कहाँ खत्म होता है, जो हमारे से चाहे वो उम्र में छोटे हो, चाहे वो स्टेटस में छोटे हो, चाहे वो कनीज़ हो, गुलाम है, वहाँ पर हमारे अखलाक समझना है कैसे अखलाक के मालिक हो। और इखलाक के अतबार से आप सबसे बेहतरीन इखलाक के हामिल थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह के रसूल, आप मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कीजिए। यानी आपको उन्होंने इतनी तकलीफें पहुँचाई है। हम लोग सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तकलीफें पहुँचाई थी। जब आपसे कहा गया कि उनके लिए आप बद्दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना कर दी गई।
चाहिए, मुझे किसी पर डांट और फटकार भी नहीं दी जाती। सोचिए वो इतना जुल्म सहकर, इतना ये खुसूसियात थी, ये उनके अखलाक था कि वो इतना जुल्म होने के बावजूद भी, ऐसा तायफ की वाक़या हम देखते हैं कि तायफ उनकी जब हुआ था तो उनके लिए वो बददुआ नहीं किए थे, लेकिन मुश्रिकीन मक्के के लिए भी वो बददुआ नहीं किए, और वो क्या किए कि मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है और मैं किसी को डांट और फटकार नहीं कर सकता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बात पर लानत और लानत की बौछार करने के लिए मैं नहीं भेजा गया, मैं तो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। आप सल्लम अपने लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया करते थे, यानी कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो कोई नुकसान होता था, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई परेशानी होता था, तो वो अपने लिए इंतकाम नहीं लिया करते थे। हाँ, जहाँ अल्लाह उसकी जिन को तकलीफ पहुँचती थी तो वो फिर अल्लाह के हुक्म से जो उनके पास वही के जरिए नाज़िल होता था, तो वो भी जैसा अल्लाह बताते थे उस तरह से वो काम करते थे। ये तो आप लेकिन आप सल्लम कभी भी किसी का इंतकाम नहीं है। इसी तरह आप सल्लम जब अपने साथियों के साथ मामला फरमाते तो बहुत तवज्जो के साथ फरमाते, यानी कि जब अपने साथियों के सहाबा कराम के साथ वो बैठते थे तो वो पूरे के पूरे तवज्जो के साथ उनसे बात सुनते थे, यानी कि पूरे के पूरे उनके साथ ऐसा नहीं कि इस तरह से बोलते थे, बल्कि पूरे के पूरे घूम कर उससे बात करते थे, बहुत अच्छे तरीके से उनको तवज्जो करते थे। इसी तरह हज़रत अमर बिन आस अपने बारे में कहते हैं कि आप सल्लम एक मरतबा मुझसे गुफ्तगू करते हुए इस तरह मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और इतने मेहरबान थे कि मैं ये समझने लगा कि आप सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, यानी कि उमर बिन आस सब फरमाते हैं कि इस तरह से मुतवज्जो हुए और इस तरह से मेहरबानी मेरे ऊपर की, मैं ये समझता था कि सबसे ज़्यादा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो मैं ये पूछ बैठा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि मैं बेहतर हूँ या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर है। फिर मैंने फरमाया कि आप ये फरमाएं कि मैं बेहतर हूँ या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर है? तो आपने फरमाया हज़रत उमर बेहतर है। फिर मैंने फरमाया कि आप ये फरमाइए कि मैं बेहतर हूँ या हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर है? तो आपने फरमाया हज़रत उस्मान बेहतर है। तो इनमें मुझे बिल्कुल उस्मान अमर बिन आस कहते हैं कि मैंने जब ये सवाल आपकी खिदमत में पेश किया तो आप सल्लम ने इनका मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि हमारा इख्लाक क्या होता है कि हम जब कोई हमसे इतना मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हम उसमें गलत बयानी या झूठ का भी तकलीफ कर देते हैं कि नहीं तुम ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बात कहें और गलत बयानी से काम नहीं लिया और इतनी नरमी से बात की उनसे कि उनको बात समझ में भी आ गई और उनको बुरी भी नहीं लगी। और फिर हज़रत उमर बिन आमिर बिन आस कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि काश ये मैं बात कुछ नहीं दी, यानी कि वो इतना अच्छा से जवाब दे दिए, अपने अखलाक को भी रखते हुए गलत बयानी भी नहीं किए और उनको बुरा भी नहीं लगा। तो ये सब चीज़ हमको ऐसे तो खैर बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन जो टाइम है बहुत कम है, तो कम से कम छोटी छोटी चीज़ें आज हम जितनी भी सीखें उनके अखलाक, फहुश कलामी पर, बदगोई पर, सन दिल पर या सख्ती पर, ये सब चीज़ हम अपनी छोटी छोटी अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यही सब चीज़ निजात सकेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने हैं सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ज़्यादातर इंसान जो है गुस्सा अपने मातहतों पर करता है, जो उनसे कम हो या फिर जो गुलाम हो, जो अपने से बहुत मतलब दर्जे में भी कम हो, पैसे में भी, हर चीज़ में जो कम हो। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हदीस मुझे याद आ रही है, अनस बिन मालिक से है वो हदीस। वो कहते हैं कि एक मरतबा वो छोटे थे, 10 साल के बच्चे थे, जब से उनकी वालिदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था कि आप इनको उनसे अपनी खिदमत कराइए। तो एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ काम दिया कि फला सहाबी को बुला के लेके आओ, अर्जेंट था। तो अनस बिन मालिक जो है वो गए और वापस आ ही नहीं रहे। तो रसूलुल्लाह को बहुत तशवीश हुई कि इतनी देर हो गई, क्या बात हो गई। वो गालिबन फजर के बाद जो बैठे थे उस वक्त कहा होगा, और दोपहर गुजर गया, वालेकुम अस्सलाम, दोपहर गुजर गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं खुद जाकर देखूं कि वो कहाँ है। तो जाकर देखते हैं तो वो बच्चों में खेल रहे थे। तो उनका गुस्सा देखिए क्या आया, तो जाकर उसके सर पे हाथ देते और कहते भूल गए थे, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये इखलाक हमारे अंदर आने चाहिए। अगर
हम माएँ अगर बच्चे ही ऐसी गलती कर दे तो सीधा पीटना शुरू कर देंगे। और आपका इखलाक देखिए कि आपने बच्चे से सिर्फ इतना कहा कि क्या भूल गए थे। तो हम लोग बायोग्राफी की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे नबी अरब में आए, तो अरब का लुग़वी मायना क्या है। डिक्शनरी में अरब के मायने क्या आते हैं। अरब के मायने हैं सेहरा, बेआबो गया। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पैम्फलेट में दिया गया था कि आप लोगों से एंड ऑफ द डे फ्राइडे को आपसे क्विज होगा, जो टॉपिक बताया जा रहा है उसी के सिलसिले में। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जो जो अहम लगे उसको ज़रूर नोट करते जाइए। इंशाल्लाह वो तो अरब के लुग़वी मायने है सेहरा और बेआबो गया ज़मीन, यानी अंदरूनी तौर पर ये चारों तरफ से सेहरा और रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसकी बदौलत क्या होता है, बाहर की कौमों से ये अरब जो है महफूज है। अब देखते हैं नस्ली एतबार से। अरब में नस्ली एतबार से 3 किस्म की कौमें आबाद थी। पहली अरब आरबा, जिसे कहतानी अरब भी कहते हैं। दूसरी अरब बाइदा, ये कौमें बिल्कुल ख़त्म हो गई। जैसे हमने कुरान में भी पढ़ा ना, कौमें आद, कौमें समूद, कौमें इमालका, ये सब कौमें जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तीसरी है अरब मुस्तारबा। अरब मुस्तारबा, मीम सीन ता आइन रा बा और हा। तो अरब मुस्तारबा वो अरब कबाइल जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अदनानी अरब कहा जाता है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जाकर जुड़ता है। शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से हमारे नबी का जो नसब जुड़ता है उसके बारे में। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 6 बेटे थे, 2 मशहूर हैं, ठीक है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे। एक मरतबा क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर मिस्र के सफ़र को गए। मिस्र के बादशाह को क्या कहते हैं? फ़िरौन, ठीक है। तो जब फ़िरौन को वहाँ के बादशाह को पता चला सारा के बारे में, हज़रत सारा के बारे में, चूँकि हज़रत सारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत खातून थी। हमारे नबी भी कहते हैं कि एक महबूबा खूबसूरत है, पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं सब में हज़रत हव्वा सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दूसरी हज़रत सारा। तो हज़रत हव्वा और दूसरी हज़रत सारा। तो हज़रत सारा के बारे में जब फ़िरौन को पता चला तो वो बदनीयत हो गया और उसने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। तो सारा ने अल्लाह से दुआ की, जिसकी वजह से वो बादशाह जो है वहीं पे मबहूत हो गया। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था, बल्कि बिल्कुल काँप रहा था। उसके बाद जब उसने माफ़ी मांगी सारा से, तो उन्होंने माफ़ किया, तो फिर वो अपनी पुरानी हरकत पे वापस आ गया। फिर उन्होंने बद्दुआ की। इस तरह उसने 3 बार अपनी हरकत दोहराई। तीसरी बार में जब हज़रत सारा ने अल्लाह से दुआ की तो ये जो है माफ़ी मांगता है और समझ जाता है कि ये अल्लाह की बहुत नेक और बुजुर्ग खातून है, जिसकी वजह से उस हज़रत सारा का ऐसा रोब पड़ा फ़िरौन पर कि उसने अपनी बेटी हज़रत हाजिरा को हज़रत सारा को हिबा कर दिया, तोहफे में दे दिया कि आप इसको ले जाए। तो हज़रत हाजिरा को हज़रत सारा ने लिया और लेकर अपने शौहर के ये बे औलाद थी, इनकी कोई औलाद नहीं थी और औलाद का बहुत शौक़ था। तो इन्होंने क्या किया, अपने शौहर से शादी करा दी हज़रत हाजिरा की। वक्त गुज़रता गया, हज़रत हाजिरा को अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी औलाद अता फरमाई। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अब हज़रत सारा को गैरत महसूस हुई
اور انہوں نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کر کہیں دور چلے گئے، وہاں نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے حالات بھی ہو گئے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو لے کر عرب کی طرف نکل گئے، اور مکہ میں جہاں پہ کعبہ ہے، آج کی طرح کعبہ نہیں تھا بلکہ ایک ٹیلے کی شکل میں ابھری ہوئی چیز تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں لے جا کر جب چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام نے بھوک سے بے قرار ہو کر اپنے ایڑی رگڑا زمین میں تو زمزم کا کنواں ابھر آیا، تو جیسے ہی زمزم ابھر آیا تو ایک قبیلہ جا رہا تھا وہاں سے، اور قبیلہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پانی کہاں، جہاں پانی ہوتا ہے وہ وہاں اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں، تو بنو جرہم ایک قبیلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے، تو انہوں نے حضرت سارہ سے پرمیشن لی کہ اگر آپ ہمیں پرمیشن دیں تو ہم اپنا قافلہ یہاں لگا لیں، تو حضرت سارہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پرمیشن تو دوں گی، لیکن اس پہ جو ہے مالکانہ حق زمزم پہ میرا رہے گا، تم لوگ رہ سکتے ہو، حضرت حاجرہ سے، کیونکہ وہ وہاں بسائی گئی تھی نا، تو حضرت حاجرہ نے پرمیشن دے دی لیکن مالکانہ حق جو ہے وہ اپنا ہی رکھا، تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بنو جرہم کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوتے گئے، تو یہ جو بنو جرہم جو قبیلہ تھا اس کی عربی بہت اچھی تھی، تو ان سے انہوں نے عربی بھی سیکھ لیا، اور جب بڑے ہوئے تو انہی میں سے ایک خاتون سے ان کا نکاح ہو گیا، اور جب ان کا نکاح ہو گیا تو حضرت حاجرہ اس دوران میں وفات کر گئی، اور حدیث مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اس دوران میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے 4 مرتبہ آئے، ایک مرتبہ کب آئے جب اسماعیل علیہ السلام 12 یا 13 سال کے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا تھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ گئے اور آپ نے وہ کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جگہ میں دمبا دے دیا، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ کب گئے جب ان کی شادی ہو گئی، کس سے؟ بنو جرہم کی خاتون سے، جب ان کی شادی ہو گئی اس وقت آپ گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے، تو وہ گھر پہ نہیں تھے، تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، یعنی بہو سے ملاقات ہوئی، تو بہو سے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو بہو نے اللہ کی ناشکری کی کہ بہت تکلیف کے دن گزر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا کہ بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، تو جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور بیوی نے بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے والد تھے اور انہوں نے اس کو طلاق دینے کے لیے کہا ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کب آئے؟ جب آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، تو اس درمیان میں انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو جرہم قبیلے کی جو سردار کی بیٹی تھی اس سے پھر ان کا نکاح ہوا، دوسرا نکاح، اور جب ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ آئے تو پھر اپنی بہو کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے کیا حال ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بہت اچھے حالت میں اللہ نے رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو سمجھ گئے کہ یہ بیوی ان کو پسند آئی ہے، لہٰذا ان سے جو ہے، اور چوتھی مرتبہ کب آئے؟ چوتھی مرتبہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے کعبہ کے پاس جو درخت تھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام آتے ان سے ملنے، تو ایسے موقع پہ ایک بیٹا جو اپنے باپ سے بہت دن کا بچھڑا ہوا کیسے ملے گا، تو ایسے باپ بیٹے ملے، اور ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں مل کر یہاں پہ کعبہ کی تعمیر کرو، اور دونوں باپ بیٹے نے مل کر پورا خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ اس گھر کا حج کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں پوری دنیا میں تو عرب کے خطے میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے آواز لگائیں میں پہنچا دوں گا دنیا میں، تو اسی پکار پر، اسی اعلان پر ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پکار پر حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پہنچا دی، اور ہم سب
वहाँ जाते हैं हर साल। तो ये 4 मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। तो इसी बीवी से अल्लाह ताला ने उनको 12 बेटे दिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को। उसमें से एक बेटा जो कनाना था, एक बेटा का जो कबीला था कनाना, उससे जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब जाकर मिलती है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल का इंतखाब किया, फिर इस्माइल की औलाद में से कनाना को मुंतखब किया और कनाना की नस्ल से कुरैश को, यानी कनाना की नस्ल से कुरैश को चुना, फिर कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। तो इस हिसाब से हम आते हैं कि अरब जो है प्योर तौहीद का गढ़ था, यानी इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी तो वहाँ पे तौहीद ही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम जिक्र करेंगे कि वहाँ बुत परस्ती कैसे दाखिल हुई। पहले हम देखते हैं कि मक्का में कबीला जुरहम का जो वजूद था वो कितने साल रहा? 2100 साल जुरहम जो है वो आबाद रहा। इसके बाद जो है कबीला बनु खुजा ने मक्का पर कब्जा कर लिया। 2100 साल तक बनु जुरहम काबिज रहा मक्का पर, और उसके बाद जो है बनु खुजा जो कबीला है वो काबिज हो गया मक्का पर। तो बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त जमजम का कुआं जो है वो बिल्कुल पाट कर दिया, बंद कर दिया। क्या किया? जितनी तारीखी चीज़ें थी, तारीख हिस्ट्री की जितनी सारी चीज़ें थी, जैसे काबा के बाहर 2 सोने का हिरन था तो उसको लेके जमजम के अंदर डाल दिया, या काबा से हजर अस्वद निकाल के जमजम के कुएं में डाल दिया, जमजम के कुएं को बिल्कुल पाट कर दिया कि उसका नामो निशान मिट गया, किसी को नहीं पता। फिर बाद में रहा कि यहाँ कोई जमजम था भी, और ये करके बनु जुरहम वहाँ से चला गया। तो अब हम देखते हैं कि अरब में उसके बाद जो है बुत परस्ती फैल गई। 2100 साल तक तौहीद का मरकज़ था अरब, लेकिन बनु खुजा का एक शख्स जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अम्र बिन लुहई एक शख्स था को अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देंगे, जिसने अरब में बुत परस्ती को फैला दिया। तो ये बुत परस्ती कैसे फैली, उस वक्त के समाजी और सियासी और मजहबी हालात क्या थे, इस पर रोशनी डालेंगी सिस्टर गज़ाला अब नमाज के बाद इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप अरब के हालात सुनेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में क्या हालात थे, हर एतबार से, सियासी, समाजी, मजहबी एतबार से अरब में कैसे हालात थे, आपको सिस्टर गज़ाला बताएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के हालात। अरब के आम बाशिंदे हम लोग पहले भी मैम से सुन चुके हैं कि वहाँ पे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख़ानदान आबाद था, उनका ही वो सिलसिला चला आ रहा था। उनका कबीला था बनु जुरहम। फिर उसके बाद फिर बनु खुज़ा ने से बनु जुरहम को वो लोग वहाँ से रुखसत हो गए, तो फिर वहाँ पर बनु खुज़ा ने वहाँ पर काबिज हो गए। तो अरब के आम बाशिंदे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग के नतीजे में हज़रत तौहीद पर कायम थे, यानी कि एक अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी शिर्क दाखिल होता गया। वो इस तरह से हुआ कि बनु खुज़ा का सरदार था ये अमरू बिन लुहई था। उसने मुल्क शाम का सफ़र किया, तो वहाँ से एक बुत, हुबल नाम का एक बुत ला करके वहाँ पर खाना काबा में नस्ब कर दिया, क्योंकि वो उसकी इज़्ज़त करते थे लोग और उसे आलिम व फाजिल समझते थे और उसकी बातों पर यकीन रखते थे। तो इस अमरू बिन लुहई ने अहले मक्का को शिर्क की दावत दी अल्लाह के साथ,
اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے شرک کی دعوت دی کہ اس بت پرستی جو ہے لوگ شروعات کریں. تو اہل مکہ نے اس کے باتوں پر یقین کیا اور بت پرستی جو ہے ان لوگ کے اندر داخل ہو گئی. اس طرح سے ہر آہستہ آہستہ جو ہے ہر قبیلہ میں ہر ایک گھر میں ایک بت ہو گیا. اور اس طرح سے انہوں نے خانہ کعبہ کو بھی بتوں سے پورا بھر دیا. جب رسول اللہ نے جب خانہ کعبہ کو جب عرب مکہ فتح کیا تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. اور ان لوگوں کے بڑے بڑے بتوں کے نام میں سے ہے لات، عزا، منات، یہ سب تھے جو عرب کے بڑے بڑے بتوں میں سے تھے. اور اس طرح سے جو ہے بت پرستی اور شرک و بدعت جو ہے ان لوگوں کا سب سے بڑا دین بن گیا تھا. اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم ہے، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہے، لیکن دراصل وہ بت پرستی پر قائم تھے. حضور کی ولادت سے قبل کا دور جو ہے جاہلیت کا دور تھا. وہ بتوں کی دراصل وہ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے تھے. انہیں سے اپنی فریاد رسائی کرتے تھے، اپنے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے ان سے فریاد التجائے کرتے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں گے اور وہ اپنی مرادیں پوری کروا دیں گے اور اللہ سے وہ قریب ہو جائیں گے. اس لیے وہ جو ہے ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے مراد پوری کر. وہ اس لیے وہ بتوں کا حج و طواف کرتے، ان سے نذرانے مانگتے، ان کے لیے قربانیاں بھی کرتے تھے. اور اپنی کھیتی اور جانوروں کا ایک حصہ تو وہ جو ہے اللہ کے لیے وقف کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بتوں کے لیے بھی وقف کر دیتے تھے. اور اس طرح سے ان کے اندر بہت سارے بدشگونیاں اور بہت سارے توہم پرستی بھی ان کے اندر داخل تھی. بہت سارے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے وہ ازلام یعنی فال کے تیر استعمال کرتے تھے. اس تیر میں ہاں یا نہ لکھا رہتا تھا. اگر چھوڑتے تھے جس میں ہاں آ جاتا تھا تو وہ کام کر گزرتے تھے، اور نہیں لکھا رہتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے. اور وہ کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی باتوں پر بھی ایمان رکھتے تھے. ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. اور ان کے اندر بدشگونی کا رواج بھی بہت عام تھا. تب جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتے تو ہرن یا کسی جانور کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے. اگر وہ داہنی طرف جاتا تو وہ کام کر لیتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو وہ اس کا ارادہ ترک کر دیتے تھے. اور اس طرح سے وہ بہت سارے منحوسیت بھی بہت سی چیزوں میں سمجھتے تھے. بیماریوں کی چھوٹ کے قائل تھے. بہت سے دنوں، مہینوں، عورتوں یا گھروں کو وہ جو ہے منحوس سمجھتے تھے. روح کے الو بن جانے کے بھی قائل تھے کہ روح جو ہے مرنے کے بعد جو ہے الو بن جاتا ہے. لیکن ان سب عقائد و اعمال کے باوجود بھی ان کے اندر دین ابراہیمی بھی کچھ باقیات تھی ان کے اندر. اس لیے وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ بھی کرتے تھے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان میں بہت ساری بدعات بھی ایجاد کر دی تھی اس سے دین ابراہیم میں. جیسے وہ حدود حرم میں حج کے دوران وہ حدود حرم میں رہتے تھے. عرفات کے میدان وہ نہیں جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حدود حرم کے پاسبان ہیں. اور احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حج کے دوران جو ہے مرد ننگے طواف کرتے تھے اور عورتیں جو ہے صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی تھی اور طواف کرتی تھی. اور اس کے علاوہ وہ حالت احرام میں گھر میں مین دروازے جو سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے. اس طرح سے اور بھی بہت ساری ایجاد انہوں نے اپنے اس سے دین میں کر دیا. تو یہ تھے ان کے دینی حالات تھے. مشرکین عرب میں جو ہے مشرکین عرب کے علاوہ عرب میں جو ہے بہت سارے دین کے لوگ بھی جیسے یہودی، نصرانی اور بھی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد تھے. لیکن وہ جو ہے وہ بھی اپنے اصل دین سے ہٹ کر کے بہت ساری ایجادات اپنے دین میں نئے نئے رسم و رواج جو ہے اپنا لیا تھے. تو عرب کے دینی حالات کے بعد اب ہم سماجی حالات پر نظر ڈالیں. عرب کے لوگ جو ہے کیونکہ قبائل میں بٹے تو زمانے میں قبیلہ ہوتا تھا، سب اپنے اپنے قبیلہ کے لوگ رہتے تھے. لیکن آپس میں جو ان کے اندر بہت ہی جنگ چلتی رہتی، ہر وقت خون ریزی ہوتی تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑائی چلتا رہتا تھا. جوا، شراب خوری، زناکاری، فحشکاری یہ سب جو ہے عام تھی. عورتیں بیچی اور خریدی جاتی تھی. اور بہت سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بچوں کو جو ہے زندہ مار جاتے تھے یا تو اپنی بیٹیوں کو خرچ کے خوف سے جو ہے زندہ دفن کر دیتے تھے. تو یہ تھے سماجی حالات. اور اس کے علاوہ جو ہے
उनका जो है ज़रिया माश तो मेन तिजारत था, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी तो बहुत कम होती थी, ये रेगिस्तानी इलाका था, तो इसलिए वहाँ तिजारत होती थी। लेकिन तिजारत भी उन लोग के चूँकि अंदर जंग व जदाल ज़्यादा होते रहते थे, तो उन लोग जो है अमन और सलामती का फिज़ा जो है बहुत कम था। सिर्फ हिरमत के महीने 4 हैं, उस वक्त जो है जंगबंदी रहती है, तो उस वक्त सिर्फ 4 महीने जो है उन लोग का तिजारती सफ़र होता था, उनके बाज़ार लगते थे, क्योंकि उस ज़माने में अमन और सलामती का माहौल रहता था। तो ये थी इनके अंदर जो बहुत सारी ये जगह अपनी मुसल्लिम है कि बाशिंदगान अरब के अंदर बहुत सारी रजील व खसीस आदतें पाई जाती थी, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी पसंदीदा अखलाक फाजला भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है, जैसे मिसलन कर्म सखावत, वफ़ाए अहद, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स वगैरह। ये सब उनके अंदर कुछ खूबियाँ पाई जाती थी, तो लेकिन ज़्यादा इनके अंदर बुराइयाँ ज़्यादा थी। तो ये थे हमारे पूरे एक तायराना नज़र हमने इसमें डाली कि अरब के क्या हालात है, इसके बाद ही इस्लाम का ज़ुहूर हुआ। कहा जाता है कि ये जो शख्स था ना, आम्र बिन लुहई, उसके ताबे एक जिन था, तो वो जिन जो है उसको वही करता था कि देखो फला जगह में ना बुत दफन है। जैसे एक मतलब वो शाम का सफ़र कर रहा था, तो वहाँ उसने बुत परस्ती देखी, तो उसको बहुत मज़ा आया कि ऐसी इबादत करना चाहिए। हम लोग तो बिन देखे खुदा की इबादत करते हैं, तो वो वहाँ से नजराने के तौर पे वो बुत मांग के लिए आता है अरब में, और कहता है कि हम लोग इसके सामने हम लोग अपनी जो है हाजात रखेंगे। तो ऐसे करके आहिस्ते आहिस्ते वो सबको कन्विंस कर लेता है। उसके बारे में ऐसा आता है कि लोग इतने आदी हो गए बुत परस्ती के हर चीज़ में बाज़ इसमें रवायत में आता है कि वहाँ के लोग जो है जब सफ़र में निकलते तो अपना एक बुत बना लेते कि ये बुत जो है हमें सफ़र में प्रोटेक्ट करेगा। और जब सफ़र में कोई बाज़ दफ़ा मिट्टी का बुत बना लेते, या कुछ नहीं तो सत्तू से बुत बना लेते, आटे से बुत बना लेते, बना के बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि लोग सफ़र में गए और वहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई। जब इन्हें भूख लगने लगी तो ये क्या करते, कभी अपने जो भगवान का कभी हाथ तोड़ा और खा लिया, कभी पैर तोड़ा खा लिया, ऐसे करके खा लिया करते। और कभी अगर बुत नहीं होते साथ तो क्या करते, अगर देखते रास्ता में कोई गंदगी गिरी हुई है या जानवर का जो वो ओझड़ी वगैरह गिरा है, तो उनको एक जगह करके टीला बना लेते, फिर उसकी पूजा शुरू कर देते। ऐसी कौम थी, यानी कि अकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और जब जहाँ पे आप देखिए कि उनकी खुददारी क्या थी कि बात में जंग शुरू हो जाती, यानी पानी भरने में अगर कुएं से किसी ने अपने जानवर को पहले पानी पिला लिया तो उसमें जो जंगें शुरू हो गई। घोड़ा दौड़ाने में किसी ने पहले दौड़ा लिया तो उसमें जंग शुरू हो गई। यानी इतनी बेअक्ल कौम थी, लेकिन इतनी बुराइयों के बावजूद उनमें 2 खूबी थी। 2 खूबी ये थी कि इनके अंदर करम और सखावत बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी इफ़ाए अहद बहुत था। अगर किसी चीज़ में अहद कर लेते, यानी वादा कर देते किसी से, तो वादा को ज़रूर पूरा करते। और सखावत कहा जाता है कि अगर अरब के किसी घर में कोई मेहमान चला जाता और उसके पास उसका ज़रिया माश यानी कमाने का घर सिर्फ एक बकरी होती, तो वो मेहमान के लिए वो बकरी भी ज़बह कर देता। यानी इतनी सखावत थी उनके अंदर, जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ थी। और सबसे बड़ी जो बुराई थी वहाँ पे, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वो बच्चियाँ जब पैदा होती उनको ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। यानी औरतों का कोई मुकाम नहीं था, औरतें बेची और ख़रीदी जाती थी उनके एतबार से। तो ऐसे अंधेर माहौल में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने औरत की इज्जत कहाँ से कहाँ ले गए। जहाँ बेटी पैदा होते ही दफन कर दी जाती थी, एक औरत का अगर शौहर मर जाता तो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता। यानी उसके जो भी अगर सौतेली बीवी के जो बेटे होते थे वो उसको अपनी मिल्कियत समझ लेते थे और उस पर जो चाहते सितम करते थे। या किसी ने अगर कोई औरत बेवा हो गई, साथ साथ कोई अजनबी शख्स आके उस पर अपनी चादर डाल देता, वो उसकी मिल्कियत हो गई आज से। यानी औरत की कोई ज़िंदगी नहीं थी। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर
عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا، جہاں آپ نے ماں کو باپ سے 3 درجہ بلند کر دیا. ایک باپ جو 2 بیٹی کا باپ ہو، اس کے لیے جنت میں اپنے ساتھ اپنے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے میں اور یہ وہ شخص ہو، یہ 2 انگلی کے برابر ہم قریب ہوں گے جنت میں. وہی ہمارے رسول ہیں جنہوں نے بیوی کی گواہی پہ شوہر کو بے گناہ قرار دیا کہ اگر ایک بیوی یہ کہہ دے کہ میرا شوہر اچھا شخص ہے تو اس کی دلیل مانی جائے گی کہ وہ شخص حقیقت میں اچھا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ ساری جو چینجز ہمارے رسول کے آنے کے بعد ہوئی. عورتوں کو جو آج عورتیں نعرہ لگاتی ہیں کہ عورتوں کو اسلام میں حق نہیں دیا جاتا، مردوں کے برابر نہیں ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. اللہ کے رسول نے عورت کا درجہ بڑھایا ہے. تو ہم یہاں آتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش سے پہلے 2 اہم واقعات ہوتے ہیں، بہت اہم واقعات ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ابھی جانا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد جو تھے بنو جرہم جب وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب ان کا نام تھا. تو آپ کی پیدائش سے پہلے پہلا واقعہ جو ہوا کہ زمزم کا دریافت ہوا، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہے ہیں. اب اس وقت تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ زمزم ہے کہاں، لیکن ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ فرشتے وہ جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ زمزم ہے. ان کے دادا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، عبد المطلب کو. جرہم قبیلے سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. ہاں. تو جب انہوں نے خواب دیکھا تو اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے انہوں نے زمزم کی کھدائی شروع کی. وہ اکیلے ہی لگے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا. اور جب وہ اس کام میں لگے اور کھدائی کرتے کرتے جیسے ہی انہیں لگا کہ اندر جو ہے کوئی کنواں ہے، بس تمام قریش والے آ گئے، ان کے جو بھی رشتہ دار تھے. اب انہوں نے کہا کہ اتنا نیک کام ہے، ہمیں بھی شامل کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے شامل کر سکتی، یہ تو اللہ نے میرے نصیب میں کیا ہے کہ مجھے خواب دکھایا، تو میں آپ لوگوں کو شامل نہیں کر سکتا. تو بس ہوا ہوگا اس وقت کچھ، انہوں نے اپنی زور دکھائی ہوگی. تو انہوں نے اس وقت کعبہ کے سامنے جا کے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تو مجھے میرے بازو مضبوط کر دے، یعنی مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ان کا مقابلہ کر سکوں، اور اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے گا تو میں ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس لا کر ذبح کروں گا، یعنی تیرے نظر کر دوں گا. تو جب انہوں نے یہ نظر مان لی اور کعبہ زمزم دریافت ہوا، اس کے بعد انہوں نے وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے. قریش والے نے کہا کہ چلو کسی عرافہ کے پاس، یعنی اس وقت جو عورتیں کچھ ہوتی تھی جو قسمت کا حال بتایا کرتی تھی، تو اس کے پاس چل کے ہم لوگ قسمت کا حال پوچھتے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے. تو یہ لوگ راستے میں جاتے رہتے ہیں تو کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہی معزز بندہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس کی قسمت میں دی. تو وہ لوگ راستے سے پھر واپس چلے آتے ہیں اور ان کی قسمت میں زمزم کی کھدائی رہتی ہے، اور پھر انہی کے اندر میں پورا زمزم کا جو مالکانہ حق رہتا ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو اتفاق سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عبد المطلب کو 10 بیٹے ہو جاتے ہیں. جب 10 بیٹے ہوتے ہیں، ان کے نام ہے حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو لہب، غیدہ، مقوم، سپار اور عباس رضی اللہ عنہ. اور ان کی 6 بیٹیاں تھیں، ان کے نام ہے ام الحکیم جن کو بیضہ بھی کہتے ہیں، برہ، عاتقہ، صفیہ، عزوہ اور امیمہ. تو ان کے یہ 10 بیٹے میں جی یہ ہم بعد میں لکھوا دیں گے. تو ان کے 10 بیٹے جب ہوتے ہیں تو پھر جب وہ باشعور ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی وہ نظر یاد آتی ہے
तो काबा के पास जाके फिर अल्लाह से ये करते कि अल्लाह मैंने जो नज़र मानी थी उसको मैं पूरी करूँगा। तो तमाम ख़ानदान वालों को बुलाते हैं और कुर्रा अंदाज़ी करते हैं। 10 बेटों के नाम कागज़ लिख के रखते हैं और कुर्रा उठाते हैं कि किसका नाम निकलता है। तो जब कुर्रा उठाते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल जाता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। और ये जो हैं उनके 10 बेटे में सबसे छोटे हैं, सबसे खूबसूरत हैं, सबसे चहीते हैं। जब ये नाम निकलता है बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब करें क्या, लेकिन नज़र मानी थी अब तो करना होगा। तो उनका हाथ पकड़ते हैं और काबा के पास लेके चले जाते हैं ज़िबा करने को। मेन वक्त में जो है उनके ननियाल वाले आड़े आ जाते हैं और अबू तालिब जो उनके सगे भाई रहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई अबू तालिब रहते हैं, वो भी आड़े आ जाते हैं कि आप नहीं कर सकते इनको ज़बा। तो वो कहते हैं कि तब मैं क्या करूं? तो सब मशवरा देते हैं कि एक काम कीजिए, आप अर्राफा के पास जाइए, उससे मशवरा लीजिए, वही जो काहिना औरतें होती थी। तो वो अर्राफा बताती है कि इसका एक हल है, वो ये कि तुम अब्दुल्ला का भी नाम रखो और उसकी जगह में उसके ऑपोजिट में 10 ऊँटों का नाम रखो और इसमें कुर्रा अंदाज़ी करो। अगर फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो फिर 10 ऊँट और बढ़ा दो, 20 ऊँट हो जाएंगे। फिर कुर्रा अंदाज़ी करो, फिर अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो ऐसे ऐसे 10 ऊँट बढ़ाते चले जाओ। तो ये बोलते हैं ठीक है, तो 10 ऊँट रखते हैं और इधर अब्दुल्ला का नाम। जब कुर्रा अंदाज़ी करते हैं तो दोबारा अब्दुल्ला का नाम आता है, फिर 10 ऊँट और बढ़ा देते हैं, 20 हो गए। फिर अब्दुल्ला का नाम निकलता है, फिर 30 ऊँट कर देते हैं, 40 ऊँट हो गए। ऐसे करते 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 जब 100 ऊँट हो जाते हैं अब नाम निकलता है ऊँटों का। तो अब्दुल्ला इस तरह बच जाते हैं और ये वहाँ पे जाकर 100 ऊँट को ज़बा करते हैं और वहीं पे उसको छोड़ देते हैं ताकि गरीब और जानवर उससे फ़ायदा उठा लें, और वो अब्दुल्ला को लेके चले आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। पहला कौन? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह ने ज़िबा करने का हुक्म दिया था, उन्हीं के नस्ल से हैं। और दूसरा उनके खुद वालिद। तो जब हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो अब अपने वालिद के साथ तिजारती सफ़र भी करते थे, तो एक मतलब अब उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, तो उनके लिए लड़की पसंद करते हैं। अब्द मनाफ की साहबजादी रहती है, यानी उन्हीं के ख़ानदान में ही बहुत ऊंचा घराना रहता है। वह बिन अब्द मनाफ की साहबजादी थी हज़रत आमना, तो उनसे हज़रत अब्दुल्ला की शादी होती है और वो रुखसत होकर मक्का ही में चली आती है। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या करते हैं, एक मरतबा अब्दुल्ला को मदीना से खजूर लाने के लिए भेजते हैं मदीना, और अभी कुछ ही माह हुए थे शादी को। जब ये मदीना जाते हैं वहाँ पे बीमार पड़ते हैं हज़रत अब्दुल्ला और वहीं पे वफ़ात पा जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पैदा नहीं होते हैं। बाज़ रिवायत में आता है 6 महीना पहले, बाज़ में आता है 2 महीना पहले उनके वालिद इंतकाल कर जाते हैं। और दूसरा वाक़या, ये तो एक वाक़या हुआ था। दूसरा वाक़या क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो है सिर्फ 50 या 55 दिन बाकी है आपकी पैदाइश को। एक बहुत ही मशहूर वाक़या हुआ, वाक़या फील का। पहले ज़माने में कैलेंडर तो होते नहीं थे, इसलिए जो वाक़या होता था उसी के हिसाब से उस वक्त को याद किया जाता था कि फला वाक़या हुआ था उस टाइम में, तो ऐसे ही लोग याद रखा करते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पूरे 55 दिन पहले जो है आमुल फील का वाक़या हुआ। कौन सी सूरत में है आमुल फील? फील मतलब हाथी वाला वाक़या, ठीक है। अब रहा एक शख्स था, हबशी था वो, जो नजाशी बादशाह रहता है ना, उसका नजाशी बादशाह का गवर्नर जनरल था वो, यमन का। तो वो जो देखता है ना कि ये अरब में बरसों से लोग हज करने आते हैं, साल में एक बार, जिसकी वजह से यहाँ के माशी हालात बहुत अच्छे हैं। यानी ये 4 महीना जो हुर्मत वाले हैं और फिर हज के दौरान बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो इसको जलन होती है। ये क्या करता है, यमन में एक कलीसा तैयार करता है, मीन्स चर्च तैयार करता है, और लोगों से कहता है कि पूरी दुनिया के लोग जो है अरब जाते हैं, वहाँ मक्का का हज करते हैं, तो मक्का में काबा का हज करते हैं। तो अब मैंने ये चर्च तैयार कर दिया, 1 साल वहाँ हज करो, 1 साल मेरे चर्च के हज करो।
تو یہ سن کر کنانا کا جو ایک شخص تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو شخص تھا، کنانا کے ایک شخص کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. وہ کیا کرتا ہے، راتوں رات جا کے اس کے کلیسا میں پورا غلاظت جو ہے اس کے قبلہ میں پورا پوت دیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اب رہا کو بہت غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ 1 سال وہاں 1 سال یہاں کرو، اب جو ہے میں خانہ کعبہ کو منہدم کر دوں گا اور لوگ یہیں پہ آ کے حج کریں گے. اس ارادے سے وہ کیا کرتا ہے، 60,000 کا لشکر لے کے نکلتا ہے جس میں 13 ہاتھی تھے. جب یہ لشکر لے کے نکلتا ہے اور جدہ اور مزدلفہ کے قریب ایک وادی محصر کا مقام ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور مکہ والے کیا کرتے ہیں، خوف سے یعنی ڈر سے کہ اتنی بڑی فوج کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے. اب مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھاٹیوں میں چھپ جاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر جا کے چھپ جاتے ہیں اور کعبہ کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور جب یہ وادی محصر میں اس کی ہاتھی پہنچتی ہے، ہاتھیوں کا لشکر پہنچتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت مشکل سے جب ہاتھیوں کو اٹھاتے ہیں، شمال جنوب یا مشرق کی طرف لے کر چلتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتا ہے. جیسے ہی قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف جاتے ہیں وہ بیٹھا تو بیٹھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جدہ کی طرف سے چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل ابابیل چڑیوں جیسی رہتی ہیں. تو جب یہ چڑیوں کا جھنڈ آتا ہے نا، تو ان کے منہ میں اور ان کے 2 پنجوں میں 3 پتھر ہوتے ہیں ہر چڑیا کے پاس، اور یہ اس کی سائز ہوتی ہے چنے کے برابر. لیکن جب اللہ نے ان چڑیوں کو بھیجا اور وہ چڑیا جب وہ پتھر گراتی تھی اور جس کے کسی بھی اعضا میں لگ جاتا تو وہ اعضا جو کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو جاتا تھا. یعنی اب جب اتنی ساری چڑیا آئی اور یہ سب کو پتھر نہیں لگا، جتنے سپاہی تھے سب کو نہیں لگا، وہاں جو ہے بھگدڑ مچ گیا، ایک دوسرے کو کچلنا شروع کر دیا سب نے، اور جس کو لگ جاتا سب کے اعضا جو ہے گرتے جاتے. یہاں تک کہ ابرہہ کہا جاتا ہے کہ اس کے انگلی کے پور میں ایک پتھر لگا اور اس کا وہ جھڑنے لگا اور وہ دوڑ کے اپنے ہاتھی پہ سوار ہو کے جانے لگا. راستے میں جاتے جاتے اس کا اعضا گرتے جا رہا تھا. گرتے گرتے جب وہ اپنے یمن پہنچا ہے تو صرف وہ پیر ہاتھ غائب ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ کے اس کا دل باہر نکل آیا. یہ حالت ہو گئی اور وہ میدان ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی جانور جو ہے چباتا ہے اناج، اور اناج چبا کے جب پھینکتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے، لوگوں کی لاشیں ایسی ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کیوں دکھائی؟ دراصل یہ ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی. اسی کے 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1571 عیسوی کو سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. تو اس وقت جو معجزات ہوئے، کیا حالات ہوئے، اس کو سسٹر ترنم آپ کو بتائیں گے. ہاں 571 صبح فجر کے بعد صادق کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا اور چائے زمزم کا بھی واقعہ پیش آیا تھا. تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح سوموار کے روز صبح صادق مکہ نے 571 میں عیسوی میں ہوئی تھی. آپ کی پیدائش سے پہلے کئی معجزات ہوئے جس میں سے 2 بیان کر چکی ہیں میں بھی، اور جس طرح سے ابرہہ کا واقعہ ہوا، اور اس طرح ابھی ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ جب ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور سا نکلا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے ایک نور سا نکلا اور اس سے پورے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. اور بعض روایت میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت
हैवान कसरा के 14 कंगूरे गिर गए और गिरेजे अपने आप को बहुत मुनादिम हो गए। तो ये एक बाबरकत हुई थी और अल्लाह ताला का बहुत करम और बहुत ही हम लोग पर मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे नबी से हम लोग को और उनकी उम्मत में हम लोगों को पैदा किया और हम लोगों पर कुरान और इतने अच्छे नबी का साया है कि हम लोग कुरान और इस नबी से हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं। उनके हर एक वाक़यात और हर एक इससे हम लोगों को एक मतलब जो मिलती है ज़िंदगी गुजारने का हम लोग को तरीक़ा आता है और उससे हम लोग अपने आप को जो है मुस्तफ़ीज़ कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ हम लोग को अल्लाह ताला अता करे। तो हलीमा कहती कि मतलब ऐसे ऐसे अज़ाफ़े मुसलसल अज़ाफ़े और खैर का मुशाहदा हम लोग 2 साल करते हैं। खैर फिर 2 साल हो गया तो अब जाहिर हल्का उनको लग रहा है कि अब तो बच्चा वापस करना वाली छुड़ा देती है और कहती है कि अब इस बच्चे को ले जाकर इसके वालिदा के पास करना पड़ता है। तो अंदर से ये दिल चाह रहा था कि ये बच्चा अभी उनके पास आ रहा है। इसकी बरकत उनके घर में इतनी हो रही थी कि वो नहीं चाहती थी कि ये बच्चा भी हम खैर फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं जाकर इसकी माँ से मुस्तफ़ी करूँगी। तब अचानक वो मतलब अल्लाह ही का करना है कि वो ये है कि उस वक्त मक्का में जब वो जाती है तो उसको वबा फैला रहता है। तो दाहिर में बोलती है कि मैं जा कर के बात करूँगी उसकी वालिदा से। जा कर के कहती है कि देखो अभी तो मक्का में यहाँ वबा फैला हुआ है तो ऐसा है कि हमको लग रहा है कि बच्चा अभी यहाँ पर रहेगा तो हो सकता है इसकी सेहत में भी कुछ ये हो जाए तो खतरा लग रहा है। तो वो बातचीत करने के बाद उनको भी लगता है उनकी वालिदा को कि हो सकता है कि बच्चे के सेहत को खतरा हो तो इससे अच्छा है कि अभी मैं इन्हें इसे वापस ही दे देती हूँ। तो वो बोलती ठीक है आप इसे अभी ले जाइए कुछ दिन और अपने पास। वो फिर खुशी खुशी लेकर के आती हैं और 2 साल तक फिर और वो बिना रज़ात छुड़ाने के बाद भी 2 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहती हैं। एक रोज़ का वाक़या है जब वो 3-4 साल के हो जाते हैं 4 साल की उम्र में वो बाहर खेलते रहते हैं बच्चों के साथ। तो शक सदर का जो वाक़या पेश आता है जिब्रील जब आते हैं और उनका दिल सीना चाक करते हैं तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि मोहम्मद मर गया ऐसे करते हैं। भाई हलीमा के पास दौड़ के जाते हैं उनको बोलते हैं तो वो घबरा जाती हैं आती हैं तो देखते हैं कि बच्चा ठीक है मगर कुछ बोल नहीं रहा है सुस्त है पर कुछ बोल नहीं रहा है। तो इस बात से वो डर जाती हैं और उनको लगता है कि अब ये जो है इसको जा करके अपने उसको वालिदा के लिए हवाले करें। इस तरह फिर वो ला करके उनको उनकी वालिदा के हवाले कर देती हैं और उसकी वो सौगात को 4 साल रहती है। उसके बाद उनकी वालिदा आकर जो है वो बहुत ही प्यार से 2 साल तो ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रही 2 साल वो अपनी वालिदा के साथ रहें। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो अब्दुल मुत्तलिब दादा ने उनकी परवरिश भी 2 साल तक वो किए। 8 साल जब हो गई उनकी उम्र तो फिर अब्दुल मुत्तलिब भी चल बसे और वो अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी परवरिश की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द करके जाती है कि इसकी जो है परवरिश बहुत अच्छी है। तो अबू तालिब उनको बहुत चाहते भी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बहुत मेहनत मोहब्बत और शफ़क़त से उनको परवरिश करते हैं। यहाँ तक कि वो काबा में जब वो जाते हैं वहाँ पर एक चादर बिछाई जाती थी उसमें जा करके वो जब बैठते थे जिसमें अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे अबू तालिब बैठते थे तो वो चादर में वो उनके अपने बच्चे भी नहीं बैठते थे मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा जाते थे तो वो उनका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा और इस तरह पूरा बचपन जो है अबू तालिब के साया में गुजरी। 12 बरस की उम्र में उनको ले जाने लगे तजारत में। फिर इसी तरह उनका सारा बचपन उन्हीं के पास गुजरा। शादी भी करनी हो वहाँ से खदीजा के घर। इस तरह कुछ हदीस है एक को हज़रत मैं हदीस है तौहीदी के बारे में कहूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया ईमान क्या है। आपने इरशाद फरमाया जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। तुम्हारा अमाल हो तो तुम मोमिन हो तुम्हारा ईमान तक अच्छा। और फिर एक और है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है रसूल ने इरशाद फरमाया ईमान की 70 से ज़्यादा शाख ईमान की 70 से ज़्यादा शाख है। हमने सबसे अफजल शाख
ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना और सबसे अदना शाख जो है रास्ते से किसी कांटे वाली चीज़ को तकलीफ की चीज़ को हटा देना है। और हया ईमान की शाख, हया ईमान की एक शाख। तो हया की ये हकीकत है कि वो इंसान को गलत काम से बचने पर आमादा करती है और साहिब हक के हक में कोताही करने से रोकती है। ये हया है। अल्लाह ताला हम लोग को इसी पर चलने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम लोग इसी तरह अपने ईमान को रोज़ बरोज़ चलिए कि हम अपने ईमान को कैसे पेश करें, हम मेरा ईमान मतलब किस तरह से ये होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जितना ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुम्हारा ईमान जो है तेज होता जाएगा, तुम जो है ईमान में आगे बढ़ते जाओगे। अल्लाह ताला फरमाया और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगम्बर नहीं भेजा जिसके पास हमें ये वही ना भेजी हो मेरे से ना कोई माबूद नहीं, इसलिए नहीं इबादत करो और करते रहना चाहिए। हमको कम से कम 25 बार भी दिन भर में नमाज पढ़ने के बाद तो बहुत सारे मौजज़ात आप लोगों ने सुनी, तो 2 मौजज़ात मैं बताना चाहूँगी जो किसी को नहीं पता। पहली मौजज़ात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए पूरे अरब में सिर्फ बेटा ही पैदा हुआ था। जिस रोज़ आप पैदा हुए सोमवार के रोज़, उस रोज़ पूरे अरब में सिर्फ बेटा पैदा हुआ। और दूसरा मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आप जैसे आमतौर पर हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। रोना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि बच्चे के सांस लेने के अमल को ठीक किया जा सके। ठीक है, जो बच्चा पैदा होते वक्त नहीं रोता है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाएगा, सांस के ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगा उसका। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए नहीं पैदा हुए थे, ये उनका मौजज़ा है कि आप दुनिया में, हाँ आप दुनिया में आए थे, रोते हुए नहीं आए। तो जैसे इन्होंने डिटेल बताया तो इसी को मैं शॉर्टली बताती चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए अपनी माँ के पास चंद माह रहे, उसके बाद हलीमा सादिया के पास चले गए। हलीमा सादिया के पास वो कितने साल रहे? लगभग 4 साल रहे। 4 साल के दौरान उनके साथ शक़े सदर का वाक़या पेश आया। जैसे इन्होंने अभी बताया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप बच्चों में खेल रहे थे, उन्होंने आपको आके लिटाया, उनका सीना चाक किया और उनके दिल को निकाला और एक तश्त में जमजम के पानी से उसको धोया और उसमें से एक लोथड़ा निकाला दिल से और कहा कि ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। और कह के उस लोथड़े को फेंका और फिर दिल को वापस अपनी जगह में लगा के सीना को वापस सिलाई करके ठीक कर दिया। तो सारे बच्चे जो देख रहे थे घबरा गए और हलीमा सादिया के पास दौड़ते हैं कि मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया। तो आप दौड़ी दौड़ी आती हैं और जब हालात देखती हैं तो बहुत घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि ये क्या मामला हुआ। ये लेके जाती हैं एक इसके यहूदी आलिम के पास। तो वो जो यहूदी आलिम देखता है उनको तो वो कहता है कि ये बच्चा को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये बड़ा होगा तो यहूदियत को ख़त्म करेगा और जो बुत परस्ती है उसको ख़त्म करेगा। तो ये वो अपनी राग अलापने लगता है। तो हलीमा सादिया सोचती है कि ये मैं किस मजनून के पास चली आई। वहाँ से बच्चे को लेके आती है और उनके दिल में डर आ जाता है कि बच्चे तो दूसरा कहाँ, फिर मैं अगर इनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ से दूँगी। तो वो ले जाके उसी साल जो है उनकी वालिदा को वापस कर देती है जब उनकी उम्र सिर्फ 4 साल रहती है। उनके वालिदा के पास वो 6 साल की उम्र तक यानी 2 साल रहते हैं अपनी वालिदा के पास। और 6ठे साल हज़रत आमिना जो है उनको लेके अपने ननियाली और रिश्तेदारों से मिलाने के लिए लेके जाती है मदीना, क्योंकि वो मदीना की रहने वाली थी। तो वो जब अपने मैके लेके जाती हैं और रास्ते में लौटते वक्त और हज़रत आमिना के साथ उम्मे ऐमन जिनको बरकत भी कहा जाता है, अब्दुल्ला की एक बांदी थी। उनके वालिद जो अब्दुल्ला थे उनकी एक बांदी थी और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। ये 3 लोग सफ़र कर रहे थे। वापसी में अबवा के मुकाम पे इनकी वालिदा की तबीयत ख़राब होती है, वहीं पे वफ़ात पा जाती है। तो वहीं उनको दफन कर दिया जाता है और अब्दुल मुत्तलिब
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आ जाते हैं। 2 साल तक आप परवरिश करते हैं। 8 साल की उम्र में अपनी वफात से पहले अपने बेटे यानी अबू तालिब को उनकी परवरिश की जिम्मेदारी देते हैं। और ये अबू तालिब वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। और जब तक ये जिंदा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर चट्टान बनकर जिंदा रहे, यानी हर तरह से इन्होंने सपोर्ट की, कभी भी कोई तकलीफ नहीं आने दी बचपन से लेके। और इनके बारे में ऐसा आता है कि जब चूँकि ये भी बहुत अच्छी खुशहाल फैमिली नहीं थी पैसे के एतबार से, तो गरीबी का आलम था, तो जब खाना वगैरह साथ में लगाते तो इनके बच्चे जो है झपट पड़ते खाना पर, लेकिन रसूलुल्लाह की आदत क्या थी कि वो पीछे ही बैठे रहते। तो अबू तालिब ने देखा कि इस तरह तो मेरा भतीजा भूखा ही रह जाएगा, तो उनको खाना अलग करके देने लगे। हर चीज़ में वो जो है बचपन से कंप्रोमाइज़ करते थे। वो सोते तो साथ लेकर, बाहर निकलते तो उनको साथ लेकर, हर जगह उनको अपने साथ रखते, बहुत ज़्यादा चाहते थे। यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से बड़े हुए तो उनको बहुत गैरत होने लगी कि चाचा की हालत ऐसी है और मैं कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ 10 साल के थे। उन्होंने बकरी चराने की परमिशन मांगी कि मैं भी कुछ हेल्प कर दूं ताकि थोड़ी सी घर में जो है फरावानी हो। तो वो बकरियां चराने लगे। अब सवाल आपका ये भी रहेगा कि हर नबी, हर प्रॉफिट ने क्यों बकरियां चराई, अल्लाह ने क्यों हर नबी को से बकरियां चराई। तो आप बकरियां चराने लगे। और 12 साल की उम्र में अबू तालिब जो है वो सीरिया का सफ़र कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िद की कि मैं भी तिजारत करूँगा, मुझे भी लेके चलिए। तो जब आपको 12 साल की उम्र में सीरिया लेके गए, वहाँ पे कुछ वाक़यात हुए। वहाँ पे एक यहूदी आलिम था, बुहैरा राहिब उसका नाम था, जो बहुत बड़ा आलिम था वो। तो जब आप इनको लेके अपने काफ़िले के साथ गए तो बुहैरा राहिब जो था वो अपने चर्च से निकलता नहीं था, लेकिन इनको जैसे ही दूर से देखता है और दौड़ कर आता है और इनसे पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तो वो कहते हैं कि मेरा भतीजा है। तो कहते हैं कि मैं चूँकि तौरात का आलिम हूँ और इब्रानी ज़बान जो है कि वो बहुत बड़े माहिर थे। वो कहते हैं कि ये जो है आने वाले वक्त में पैगंबर होंगे, लिहाजा मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप इनको सीरिया मत ले जाइए, शाम के शहर में मत ले जाइए, क्योंकि वहाँ इनको ख़तरा है, वहाँ यहूदी थे सारे। तो उनके चचा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने क्यों कहा कि ये आलिम ये जो है नबी होने वाले हैं। अबू तालिब ने पूछा कि आपको ऐसा कैसे पता चला कि ये नबी होने वाले हैं। हाँ, अव्वल बात तो ये। दूसरी बात ये वो तौरात में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मतलब उनका हाल हुलिया सारा जिक्र है, तो इससे वो जानते थे। दूसरी बात वो कहने लगे कि जब ये आ रहे थे, आपका काफिला आ रहा था, तो कोई ऐसा दरख्त, कोई ऐसी चीज़ मैंने ऐसी नहीं देखी जो इनको सजदा ना कर रहे हो। तो इससे मैं पहचान गया कि यही है वो आखिरी नबी। तो इनके साथ ये होगा कि यहूदी इनके दुश्मन बन जाएंगे, लिहाजा आप इनको लेके चले जाइए। तो अबू तालिब ने उनकी ये बात मान ली और उनको वापस से मक्का भेज दिया। ये तो 12 साल की उम्र जी वो भी तो यहूदी होगा। हाँ, राहिब थे, नसरानी थे, वो अपने चर्च से निकल के आए थे ना। उसके बाद 12 साल का ये वाक़या हुआ कि उनको प्रॉफिटहुड किया और उनके कंधे में उन्होंने फिर देखा कि सेब का निशान था, जो नबूवत की निशानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे में सेब का निशान था, बालों से वो निशान बना था सेब का, ठीक है। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के हुए तो मक्का में कुरैश और हवाज़िन के दरमियान जंग शुरू हो गई। इस जंग को जंग फिज्जार कहते हैं। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल की उम्र में पार्टिसिपेट किया था। क्या करते थे, अपने चचा को तीर और पत्थर पकड़ाते थे। तो जब ये जंग हो गई तो इस जंग के सबब से हुआ क्या कि मक्का में बहुत ही अनारकी और तशद्दुद फैल गई। जाहिर सी बात है, जहाँ भी जंग होता है तो वहाँ तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, फिर रोज़ी रोज़गार इफेक्ट होता है। तो
वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा तशद्दुद फैल गया तो फिर एक आदमी जो है, वाक़या ये आता है कि एक आदमी आया दूसरी जगह से और मक्का का एक आदमी जो रहता है वो उनका माल खरीद लेता है, यानी माल ले लेता है उनसे, लेकिन पैसे नहीं देता और उसका पूरा माल तिजारत जो है ले लेता है और गायब हो जाता है। तो ये आदमी जो बाहर से मक्का में आया था पहाड़ी पे चढ़ के चिल्लाता है कि मक्का वालों मेरे साथ इंसाफ करो, मैं यहाँ आया और लूट गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत ज़ुबैर, उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में और तमाम बड़े बड़े लोगों को वहाँ बुलवाया और उस घर में फिर एक अहद पैमान हुआ, हल्फुल फजूल के नाम से इसको कहते हैं। हल्फुल फजूल यानी एक अहद लिया गया कि मक्का के रहने वालों के साथ या मक्का के बाहर के लोगों के साथ कोई भी जुल्म होगा तो हम वो जुल्म नहीं होने देंगे, हम हर इंसान को उसका, हर एक शख्स को उसका हक दिलवा के रहेंगे। तो इस हल्फुल फजूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे जब आपकी उम्र 20 साल थी। आप कहते हैं अपने इस्लाम के दौर में कि वो जंग, ऐसी जंग, वो हल्फुल फजूल का जो अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में जो मीटिंग बुलाई गई थी वो मुझे इतनी अजीज़ है कि अगर उसके बदले कोई मुझे सुर्ख ऊँट भी दे तो मैं ना लूँ। यानी अगर इस्लाम के दौर में भी मुझे कोई ऐसे हल्फ के लिए बुलाएगा तो मैं लब्बैक कहूँगा, यानी इतना उनको पसंद आया था। तो ये 15 साल की उम्र में हल्फुल फजूल, 20 साल की उम्र में हल्फुल फजूल हुआ, ये अहद लिया गया था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तिजारती सफ़र करते रहे, करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के हुए तो आपको क्या लगता है कि आप जो तिजारत करते थे, आप एक बिजनेसमैन थे, तिजारत तो एक बिजनेसमैन करता है ना, तो बिजनेसमैन के पास क्या होनी ज़रूरी होती है? पूंजी होनी, कैपिटल होना चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई कैपिटल नहीं था। तो आप एक बिजनेसमैन नहीं थे, आप एक सेल्समैन थे, ठीक है। आप लोगों का माल लेके जाते थे, दूसरी जगह फरोख्त करते थे और उससे जो कमीशन मिलता था वो फ़ायदा कमाते थे। तो पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसे मशहूर हो गया था कि इस अरब शहर में कोई सेल्समैन ऐसा है जो अपने माल बेचता है उसकी खामी बताकर, तो उनका नाम हो गया था अमीन और सादिक, जो अमीन भी है और सादिक भी है। तो ये जो उनका लक़ब है ये पहुंचा हज़रत खदीजा तक। हज़रत खदीजा भी क्या करती थी, एक बिजनेस वुमेन थी, वो भी अपना जो है तिजारती सामान अपने रिश्तेदारों के ज़रिए से फ़रोख्त कराती और उनको उसका मुआवजा देती थी। ये हज़रत खदीजा जो थी, अभी मैंने जो जंग फिज्जार का जिक्र किया, इस जंग फिज्जार में हज़रत खदीजा के वालिद, हज़रत खदीजा के शौहर और हज़रत खदीजा के भाई तीनों कत्ल हो गए थे। तो पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी इन्हीं पे आ गई। तो ये लोगों को भेजती थी अपना सामान देकर और फिर उनको मुनाफा देती थी। और ये बहुत रईस और बहुत पाकबाज औरत थी, अत्ताहिरा के नाम से मशहूर थी पूरे अरब शहर में। और बड़े बड़े जो सरदार थे वो अपना रिश्ता भेजते थे उनके पास, लेकिन वो ठुकरा देती थी क्योंकि वो 2 बार बेवा हो चुकी थी। इसलिए अब वो ऐसे चाहती थी। एक मरतबा क्या हुआ, हदीस में आता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तवाफ़ करती हैं, तवाफ़ करने के बाद अपने घर में जाके एक कोने में बैठती हैं और बच्चे सो चुके होते हैं उस वक्त तक, तो उनको नींद आ जाती है। जब वो ख्वाब देखती हैं, जब सो जाती है तो ख्वाब देखती है कि सूरज उनके घर में आ गया और सारे अरब वाले उनकी रोशनी मांगने आ रहे उनके पास। तो ये जाकर अपने इसको बताती हैं, किसी आलिम को बताती हैं कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई नबी पैदा होगा या तुम्हारे घर में कोई नबी आएगा। तो ये सोचते हैं कि शायद मेरा कोई बेटा होगा। तो इसी दौरान क्या होता है कि कुरैश की औरतें, जो रईस औरतें होती हैं और जो स्टेटस वाली होती है, वो लोग ना वक्फे से मस्जिद जाती है, यानी हरम जाती हैं और जाके वहाँ बात सुनती हैं आलिम का।
तो इसी दौरान में सब औरतें गई और किसी आलिम का आवाज़ सुन रही थी। तो एक आलिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गुजरते हैं तो वो आलिम कहते हैं कि अभी जो शख्स गुजरा है ना, ये नबी होने वाला है। अब वो बहुत पहुँचे हुए थे, तो ये नबी होगा, तो तुम में से जो औरतें उससे शादी कर सकती हो कर लो। तो सारी औरतें मजाक उड़ाती है कि ये क्या हो गया इनको, ये तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो नबी होगा, सब मजाक में ले लेती है। लेकिन हज़रत खदीजा इसको बहुत सीरियसली लेती है। वो क्या करती हैं, उस आलिम को अपने घर बुलाती है और कहते हैं कि आपने जो वहाँ कहा था फिर कहिए। तो वो बताते हैं कि मैं सच कहता हूँ, वो लड़का जो है वो नबी होने वाला है, तो तुम अगर उससे शादी कर सकती हो तो कर लो। अब हज़रत खदीजा जो है अपना गुलाम उनके पास भेजती है अपना माल देके कि आप बिजनेस कीजिए मेरे साथ। तो अपना उनका गुलाम मैसरा रहता है और उनके साथ जब सफ़र पे भेजती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाते हैं उनका माल लेके जाने के लिए। जब वो माल लेके जाते हैं, रास्ते भर जो जो वाक़यात होते हैं हमने डिटेल में पढ़ा, क्योंकि यहाँ तो वक्त कम है इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं कह रही हूँ। तो जो रास्ते भर जो दरख्तों ने या फिर जो चीज़ सब ने सजदा किया वो मैसरा देख रहा था, सारी चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर इस सफ़र में जो है बहुत फ़ायदा कमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब उनको ला के देता और मैसरा से जब उनकी सारी बात सुनती हैं तो उनको निकाह का पैगाम भेजती हैं अपने लिए। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बहुत तंग थे उस वक्त पैसों के मामले में, तो अबू तालिब से डिस्कस करते हैं। अबू तालिब फिर राज़ी हो जाते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं। उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र रहती है 40 साल और आपकी उम्र रहती है 25 साल। यहाँ पे सबसे अहम बात जो है ये समझने वाली है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और उनकी 40 साल। तो हमारे मज़हब में एज मैटर नहीं है शादी के लिए। तो जब आप इस तरह जो उनका निकाह हो जाता है तो आपको पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शर्फ हासिल होता है। और हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी कोई मुसीबत आई या कोई, हर वक्त में वो खड़ी रही उनके साथ। अपना पूरा माल दौलत उन्होंने उनके कदमों में ढेर कर दिया। यहाँ तक कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन आए, एक काफिला जा रहा था जिसके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे और भूखमरी का आलम था उनके साथ। तो जब भी ऐसे हालात किसी के देखते थे तो आप बहुत गमगीन हो जाते थे। तो घर आए तो हज़रत खदीजा पूछती कि क्या बात है, आप इतने गमगीन नज़र आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उनके लिए। तो आप क्या करती है, अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलाती है, अरब के लोगों को बुलाती है, सबको गवाह बनाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं, वो इधर बैठी है, सारे लोग इस तरह बैठे हैं और अपना जितना माल ज़र, जितनी दौलत सब लाकर इस तरह मेज़ पे रख देती है और कहती हैं कि आज से मैंने अपना तमाम माल ज़र माल ज़र जो है वो इसका कस्टोडियन जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। तो अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ी कमाने की फिक्र से निजात मिल गई। आप जो है इस तरफ पूरी तरह से ये होने लगे। ये तो था उनकी शादी तक का वाक़या। अब जब आपकी उम्र 35 साल की हुई तो एक और वाक़या पेश आया जिसको ऑर्बिटेशन का वाक़या कहते हैं। ऑर्बिटेशन का यानी रिबिल्ड, काबा को रिबिल्ड किया गया इस वक्त। यानी उस साल जो है मक्का में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से काबा ढहने लगती है। यानी पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो इमारत कमज़ोर हो जाती है। तो तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि हम दोबारा तामीर करेंगे काबा को। तो काबा को दोबारा तामीर कर देते हैं सारे लोग मिलकर। लेकिन अब अरब का क्या हाल था, थोड़ी थोड़ी बात में जंग शुरू हो जाती थी। अब हजर अस्वद फिक्स करने का मामला आया तो जंग शुरू, 4 कबीला में मतलब जंग होते होते रहा। वो कहता है कि मैं फिक्स करूँगा, वो कहता है मैं फिक्स करूँगा। तो उन्हीं में एक बुजुर्ग आदमी रहता है, वो कहता है कि अभी कोई अगर हरम में जो सबसे पहले एंटर करेगा हम उसी को ये हक दे देंगे कि वो जो फैसला करेगा हम मानेंगे। तो इत्तेफाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर करते हैं उस वक्त। तो सारे लोग बेख्तियार क्या कहते हैं कि आमीन और सादिक आ गए कि इनका तो फैसला मानना ही मानना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हल क्या निकालते हैं, कहते हैं कि जाओ एक चादर लेके आओ। तो सारे कबीले वाले जाते हैं और चादर लेके आते हैं और कहते हैं कि हजर अस्वद को उस पर रख दो चादर पर।
और चारों कबीले वाले एक एक कोना पकड़ लो और उठाकर ऊपर करो। अब यहाँ पे मामला ये हो सकता था कि अब वो हजर अस्वद उठाकर फिक्स कौन करे। अब अगर किसी एक कबीला को कह देते हैं तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या किया, जब उन्होंने हजर अस्वद को ऊंचा किया, आपने अपने हाथों से लेके फिक्स कर दिया। तो इस तरह जंग होते होते रह गई। और ये तो 35 साल के एज में मामला हुआ। अब रफ्ता रफ्ता जो है हमारा ये आज का टॉपिक नबूवत तक है। रफ्ता रफ्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खुलवत पजीर होने लगे, वो यानी बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे। और बाज़ दफ़ा अकेले जो है किसी गार में चले जाते और ज़्यादातर गार हिरा में चले जाते हैं। वहाँ जाकर क्या करते, अल्लाह की इबादत करते। उस वक्त इस तरह नमाज वगैरह नहीं थी, जाकर ध्यान लगाते थे अल्लाह की तरफ और अल्लाह की कायनात की चीज़ों में गौर फिक्र किया करते थे। तो इतने में क्या हुआ कि एक फरिश्ता नाजिल होते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हमें पता है। और आप जो फरिश्ते हैं आकर उनको दबोचते हैं अपने सीने से और इतने कस के दबोचते हैं कि उनकी पूरी ताकत सर्फ हो जाती है और कहते हैं कि पढ़ो, इकरा। वो कहते हैं कि मैं तो उम्मी हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ। वो कहते हैं, दोबारा दबोचते हैं अपने सीने से और उनकी पूरी ताकत ख़त्म हो जाती है रसूलुल्लाह की, और वो कहते हैं कि मैं तो उम्मी हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ। दूसरी बार ऐसी हुआ, तीसरी बार जब वो कहते हैं कि इकरा, पढ़ो, तो आप कहते हैं कि मैं तो उम्मी हूँ। तो वो कहते हैं कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। कहते हैं कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। और ये जो है पहली 5 आयत नाजिल होती है। इस वाक़या के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने डर जाते हैं कि खौफ के मारे सबसे पहले बीवी के पास जाते हैं और कहते हैं हज़रत खदीजा को कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। उनको इतनी ठंड लग रही होती है तो हज़रत खदीजा उनको चादर उड़ाती और उनको सोने देती हैं। जब वो पूरी तरह नींद ले लेते हैं और जब उठते हैं तो कहते हैं कि मुझे मेरी जान का ख़तरा हो गया कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो हज़रत खदीजा उस वक्त क्या उनको तसल्ली देती हैं, वो कहती हैं कि आपको डर किस बात का, मैं देखती हूँ कि आप लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं और आप जो है यतीम के जो है रखवाले हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेंगे। ये तसल्ली उनको देती हैं और उनको तो तसल्ली दे देती हैं लेकिन खुद बेचैन हो जाती हैं। खुद अपनी तसल्ली के लिए अपने भाई के पास ले जाती हैं, उनके अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफिल के पास उनको ले जाती हैं और कहती हैं कि आप अपने भतीजे से सारे वाक़यात सुनिए, उनके साथ क्या गुजरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के लिए कहती, आप जब ये सारे वाक़यात बताते हैं तो वरका बिन नौफिल जो उनका भाई रहता है वो 100 क्रॉस एज में रहता है, इतना ज़ईफ़ रहता है। वो सुनते के साथ यही कहता है कि ये हैं आखिरी नबी, तो ये आने वाले नबी हैं और अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर इनका साथ दूंगा जिस वक्त इनकी कौम इनको निकाल देगी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख होता है कि क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी कि जिस कौम के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। तो उनके भाई कहते हैं, जो वरका बिन नौफिल कहते हैं, हाँ यही फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आता था और जिस नबी ने भी तौहीद का दावत दिया उसके कौम ने उसे वहाँ से ज़रूर निकाला है। तो अगर मुझे अल्लाह ने हयात दी तो मैं आपका ज़रूर साथ दूंगा, लेकिन वो उस वक्त तक फौत हो जाते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है 40 साल की उम्र में, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मासूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले भी मासूम थे और नबूवत मिलने के बाद भी मासूम ही थे। इसकी 2 लॉजिक है। पहली लॉजिक ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पे चढ़ के लोगों को बुलाया कि लोगों मेरी तरफ आओ, तो लोग जब वहाँ जमा हो गए और आपने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पीछे से जो है दूसरी कौम हम पे हमला करने आ रही है तो क्या आप मान लेंगे।
تو سب نے ایک زبان میں کہا کہ ہاں ہم کیوں نہیں مانیں گے, آپ تو امین اور صادق ہیں, آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ اونچی جگہ چڑھے ہیں. تو سب لوگوں نے ان کی صداقت کی گواہی دی. تو گواہی معصوم لوگوں کی دی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں قسم کھائی کہ آپ معصوم ہیں. اور خالق اپنے مخلوق کی قسم تبھی کھاتا ہے جب وہ معصوم رہتا ہے, اور مخلوق اپنے خالق کی قسم کھاتا ہے, لیکن خالق کے علاوہ بھی قسم کھانا جائز ہے مخلوق کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان اپنے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے کفر کیا ہے. تو اگر ہم نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی ہے تو توبہ کریں, کیونکہ ہم نے انجانے میں کھائی ہے. ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. تو یہ تھی بایوگرافی آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت تک. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے نبوت سے لے کر ہجرت تک. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.